First of all, I would like to welcome for opting anthropology as a optional paper in civil services. Anthropology is very scoring optional paper, and I am not advocating anthropology at the cost of other discipline. It is a reality. There are several reasons. First, we study about man, ourselves. A noted anthropologist, very famous anthropologist, Howell and Frost, he has said that Howell, A.E. Howell, he has remarked that material of anthropology is not available in books and libraries. It is within man himself. We are studying about ourselves in anthropology. So, you have to relate the topic with your own life and study anthropology in applied way. Anthropology is a subject, the topic you study, marriage, family, kinship, etc. These all topic, जैसे we marry, have family, and we have a network of kinship. So, we are actually familiar with the topic of anthropology. And most importantly, anthropology about tribals. There are three hallmarks of anthropology: man, tribe and culture. Man, tribe and culture. Just like married woman is recognized on the basis of three hallmarks: Mangal Sudra, Sindoor and Bangle. Like by that, the hallmark of anthropology is man, tribe and culture. Focus of anthropology, we study man means human being. The word anthropology consists of two words, anthropos. Anthropos means man and ology means to study. So, literal meaning of anthropology is a study of man means human being, man, woman both. So, anthropology focus is a study of man, we study about ourselves. Just I previously quoted Herskovits remarked that material of anthropology is not available in books and library. Material of anthropology available in ourselves, in man himself. You study the topics associated with you. So, anthropology is easy and scoring. I will discuss this gradually, but let us start the topics. My purpose is to develop your skill for answer writing. Academic exam and UPSC exam is different. So, the focus of my teaching is on answer writing. After discussing the basic of each topic, I will discuss the question on the topics and the way UPSC requires as per the parameters of UPSC. So, now this is the question of 2017. This is the question: define anthropology. There are various definitions. Of anthropology. You write down, because the purpose is to help you develop insight to answer writing. So, focus would be on answer writing, and it is not, it is just a start from today.
There are various definitions. First is anthropology is the study of man, is the study of man. Second, anthropology is the study of man and his works. Thirdly, anthropology is a study of man in time and space. And fourth is anthropology is the mirror of man. Beside these definitions, there are many more definitions. Beside these four, there are many more definitions. But we have to see what is the guideline of UPSC. What is UPSC parameter? UPSC guideline for answer writing. The important guideline is length not, content is important. Length not, content is important. And secondly, answer must be precise. Answer must be precise, logical and lucid. Simple words का प्रयोग करें so that everyone can understand. So these are the important things. I will come again. First, you have to know that UPSC exam, an academic exam. Academic exam means BA, MA examination. This is a test of knowledge. Test of knowledge. It is just like test match. A professor of Hindi, Mukti Bodh. About Mukti Bodh, he is a famous teacher of Hindi literature. About him, it is said that in his MA examinations, he answered only one question in 4 hours, and he did it in all his papers. But all examiner returned with a note that examiner is better than examiner and he should be appointed for professor. On the recommendation of all the professors, university constituted a board and appointed him lecturer. But if he had appeared in UPSC, he might have failed. Your selection in UPSC is as a problem solver, administrator, and you have to solve the problem. You have been given 5 problems and you remain involved only in one. So you are a problem for the administration. And what is the solution of these 4 problems? So he would have been rejected. So mind this fact, UPSC is not test of knowledge. Knowledge is a liability for you, because you see UPSC just like UPSC select administrator and administrator have to pass order
and he has to pass order. Order must be logical, precise and lucid. क्लर्क एक लॉन्ग नोट्स लिख के लाता है एंड ऑफिसर उस पर केवल इन वेरी प्रिसाइज मैनर ही gave with order. So your test is for analytical ability, decision making power. Actually this is just like, if MA exam is just like a test match, this is T20. You see in UPSC words are limited, words limited, time limited, time limited as in T20. So nature of exam is different from MA exam. Always you note that word limitation are there, so it is not test of knowledge. So from the very beginning you know the difference between two type of exam. There is a question, this is a test of book view and field view. This is question in 2012. This concept was given by M.N. Srinivas. I will discuss all things with this question paper. देखो, this is the question. Critically examine book view and field view of social reality. And this concept was propounded by M.N. Srinivas. He was a sociologist. He was a sociologist in Delhi University, but his concept changed the way of studying social sciences. Your way of study should be field view, not book view. Book view is theoretical view, theoretical. So from the very beginning, approach should be applied, theoretical, and field view is a reality. How a thing exists, you have to focus on that, है ना? Actually focus should be on field view, not on book view. Book view is theoretical view. I will discuss in course of teaching you, है ना, what is the book view and what is field view. जैसे culture, they are more than, culture is central concept of anthropology and there are more than 300 definitions on culture. Yeah, this is the book view. But we will focus on field view, how culture operate. हमारा कंसर्न होना चाहिए in UPSC contest field view of culture. Field view of culture मतलब how culture operate in society, how culture operate in society. क्या फंक्शन है इसका, क्यों पढ़ेंगे हम इसको? Culture is central concern of anthropology, but our concern of a study of culture should be not only the book view, only noting on definitions, but we actually focus on how culture actually work in society, how you regulate human life. Animal do not have culture. Culture is a human trait. Culture is human. Culture regulate in all dimension of life. I will discuss questions on culture, every question on culture, but our focus would be on field view of culture, how culture operate. इसका क्या यूटिलिटी है सोसाइटी में, क्यों हम पढ़ेंगे इसको? Not on book view. There are more than 300 definitions. So first again I am coming back to, I discussed you in the very beginning that you change your mode of study, or your mode of study should not be academic. Focus only on a study of acquiring knowledge. Knowledge is a liability for you.
in UPSC where you have the word limitation, है ना, you have 150 words, right answer in 150 words or 250 words. So these are the great limitations. So from the very beginning, my focus is on answer writing. I will discuss the topic and I discuss the way how to write answer on this very topic. Let us, है ना. So there is a change in approach. Your MA BA knowledge required test is a test of your knowledge, a scholarly approach. So it is test of book view, but UPSC is a test of field view. There is a, if you see my website, you will Sameer Saurabh blog. You may see Sameer Saurabh blog. He has returned from the interview for 3 times without a post. And when I have been teaching anthropology since 1987, Patna, and in 2015 I first came to Delhi, and it was Sameer Saurabh who approached me, sir, I have been appearing in interview thrice, I returned without a post. So he was very distressed. When I asked him to show your notes, your copy, then I suggested him that you write in your answer is on book view. You should write answer in applied way. Then I provided in my class notes. This is only my class notes, only this one, है ना? Only this one is the full course. Though some additional fact I am, है ना? This is has been, I have been teaching only this one. You will also surprised that how can a person can become IS, but of course so many from these notes. Asma Mittal also got success, rank 10. Sameer Saurabh, I guided him only 3 days, explaining my notes, and he got 127 rank. He went to my residence Patna and requested me. Actually, in that was the case in July, I think, not July, May. And he suggested me to come Delhi and he will canvass for me. I got surprised. How can a student can canvass? It is insulting for a teacher that a student tells something in his praise. Or I rejected his advice. Then he wrote a blog about me. I did not realize at that time that in Delhi there is a business. Education is just, coaching is just a business. Toppers are purchased. But I thought it very humiliating for a teacher कि I never in my life given a name of a successful candidate who have not studied me. It is unethical for me, and I maintain that. But again I come to my topic. I teach in applied way. I all discuss everything from field view that is required. So with this background, that you change your mindset, you change your way of study. Your way of study should be different from the academics. And now again I come, I have discussed these 4 definitions of anthropology. Here our approach should be analytical. Analytical. When the question is defined in anthropology and there are so many definitions, as per UPSC guideline, length not content is important. Here we have to see what is in the first definition. First definition is anthropology, study of man. Your every sentence is just like a order, and you see if a order is passed from a office by the officer, है ना, and if he like to change his order, then he had to cite reason that there is a shortcoming in the first, so I am passing the second order with a new letter number and date. He can't pass the same order in the same letter number,
because then he would be caught that you have taken bribe and you change your order. So, if he lie to change the order, he had to cite the reason. So, your every sentence is like an order. If you lie to cite the second definition, anthropology is a study of man and works, then you have to mention the shortcoming of the first, because UPSC guideline is length not content is important. So, similar things should not be repeated. UPSC is very against about the repetition. Don't mention the same thing again. Repetition is highly objectionable. So, if you have written something, then you can't repeat the same again. So, analyze all the definitions. So, your way should be analytical. You see what is in the first definition. Is second different from the first? अगर different नहीं है तो no need of mentioning the second definition. And if third definition is similar to the second one, there is no need of mention the third definition. So, one by one you analyze all the definitions. Never mention similar things. So, analysis is very important. Now, I come answer, and now I am showing how to write the answer. The word anthropology, you write down the word anthropology consists of two Greek words. Two Greek words. Anthropos means man, ology means to study. So, literally the word anthropology implies the study of man, human being, both man and woman. However, in this literal definition, it is not clear what about man to study. There are other disciplines, biology, economics, political science, history, that study man. What is something unique about a study of man in anthropology? In which respect anthropology is different from another discipline, study of man? This definition only says anthropology is study of man, but it is silent about the different aspect of man. Herskovits, next, you change the program. Herskovits is American anthropologist. Through his definition, anthropology is a study of man. Anthropology is the study of man
and his works. Anthropology is the study of man and his works. Clarify that anthropology studies man from biological, social, cultural, economic and political aspect of man. However, अब देखो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये फ्रॉम 5 पॉइंट ऑफ व्यू, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. So this is logical because first paragraph, ये फर्स्ट पैराग्राफ को क्लियर कर रहा है सेकेंड पैराग्राफ. लॉजिकल मीन्स ऑल पैराग्राफ शुड बी इंटररिलेटेड. तो फर्स्ट पैराग्राफ ओनली से दैट एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन, बट व्हाट अबाउट मैन, क्या हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी में, क्या समथिंग न्यू है एंथ्रोपोलॉजी में, इस पर डेफिनेशन वो लिटल है और साइलेंट. सेकेंड डेफिनेशन हर्स्कोविच ने वर्ड यूज किया मैन एंड हिज वर्क्स. थ्रू यूज ऑफ दीज टू वर्ड्स उसने बताया कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज मैन फ्रॉम 5 डायमेंशन. बायोलॉजिकल, देखो आवर बॉडी इज बायोलॉजिकल इंडोमेंट, दिस इज बायोलॉजिकल डायमेंशन, बट वी मैरी, हैव फैमिली, हैव किनशिप, दिस इज सोशल डायमेंशन. we have as per rule, we believe in religion, we worship Bapa Maurya, now this function is in full swing. So we worship gods, our deities. So this is cultural dimension. We have a livelihood, that is economic dimension, and we follow the rules of society, that is political dimension. So we study man from 5 point of view, 5 aspects of man. So Herskovits clarified, clear the shortcoming of the first is what about man to study. इसको इसने क्लियर किया, बट दिस डिफिनेशन इज ऑल्सो लैकिंग सम रिस्पेक्ट. बट लिखना, बट द शॉर्टकमिंग ऑफ Herskovits definition is that, but shortcoming of Herskovits definition is that it is silent on the study of man, of whence and where. ये 2 क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड. मैन ऑफ वेंस, कब के मानव का हम स्टडी करेंगे, वेदर बी स्टडी पास्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स और बी स्टडी प्रेजेंट लिविंग ह्यूमन. रिगार्डिंग दैट Herskovits definition is silent. And second question is whether we study people of India only in anthropology or people of the whole world. This is also not clear in Herskovits definition. 2 questions remain unanswered in his definition. ठीक है, अब हम थर्ड डिफिनेशन की बात करेंगे, बट बिफोर दैट, चूंकि देखो एज ए बिगिनर यू शुड नो ABC of the subject also, but answer must be as per the parameter of UPSC. ये नहीं कि आज पहला क्लास है, नो, पहला क्लास में भी हम वही पैमाना फॉलो करेंगे जो लास्ट क्लास में फॉलो करेंगे. यानी UPSC जो गाइडलाइन है कि आंसर मस्ट बी लॉजिकल, प्रिसाइज एंड लूसिड, दैट पैटर्न, दैट पैरामीटर मस्ट बी फॉलोड इवन इन द बिगिनिंग क्लास. ये नहीं कि पहला क्लास है, ये सब कुछ नहीं, ये पहला मापदंड वही रहेगा जो UPSC ने सेट किया है.
लॉजिकल प्रिसाइज वे आई हैव टू फॉलो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, एज ए बिगिनर यू शुड ऑल्सो नो हाउ फ्रॉम दिस टू वर्ड्स मैन एंड वर्क्स, ये टू वर्ड्स है एंड इसी वर्ड से 5 एस्पेक्ट आया, उसको भी आपको जानना चाहिए, लिखना नहीं है। यू शुड नॉट मेक इट ए पार्ट ऑफ योर आंसर। ABC जैसे आपके लिए तो ये चीजें एग्जामिनर नोज, इसलिए उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको ये हमें 2 वर्ड्स का आपको वर्णन करेंगे। मैन, हर्षकोवी एक वर्ड यूज किया है और दूसरा वर्ड क्या उन्होंने, वर्क्स। ये 2 वर्क्स है ना, फ्रॉम द यूज ऑफ दीज 2 वर्ड्स ही क्लैरिफाइड दैट एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज मैन फ्रॉम बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैसे ये आया, ये हम भी आपको एज ए नोविस यू शुड नो, बट डोंट मेक ए पार्ट ऑफ, मतलब ये आप ही जो अपने आंसर में उसको आप अंडरलाइन कर दो इस तरह से और उसको यहाँ पर रफ कर दो। यू विल नॉट मेक इट ए पार्ट ऑफ योर आंसर, आप इसको रफ में कर लें। यू विल नॉट मेक इट ए पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लो और समझो कि ये रफ है, और जहां एंड करेंगे ना उससे फिर थर्ड डेफिनेशन हम शुरू करेंगे। जैसे न्यूज में आता है ना, न्यूज आपको कहता है आज ये मेन न्यूज है आज का, इसके बाद थोड़ा देर में कहता है हम लोग कॉमर्शियल ब्रेक लेते हैं। तो समझो एक कॉमर्शियल ब्रेक में हम आपको ये सब बताएंगे। आंसर मैन, हर्षकोवी से मैन इज man is first of all a biological being, and as a biological being man has hunger, thirst, sex. All living organism is a biological being, and man is also a biological being, but unlike other organism, जैसे ये डॉग है या काऊ है, तो इसका काफ जो है ना ये खड़ा होगा और स्टार्ट सकिंग मदर्स मिल्क, मतलब काऊ मिल्क। तो अदर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सकते हैं, but unlike other organism, human child is very helpless. If he does not get support from others, parents, others, he cannot survive. As a biological being, man is not sufficient to survive. He cannot satisfy his needs alone. So man has made so many things, and first he made social life. What we mean by social life? Man married, marriage, family, kinship, etc. ये social life. Always have a question in mind. Why social life? है ना? Why social life? Answer is to satisfy biological needs. Biological needs. Always have a question in mind. अगर if you not question, you will forget. So always have question. हर चीज में छोटी छोटी चीज में क्वेश्चन करो। हम I think you must have come from technical background, engineering, doctor. So actually your background is different. Unless you know the reason, you can't sustain it in your mind. So always have. Why social life? The answer is to satisfy
biological needs. There is a question in 89, what is the function of marriage? ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ पर क्वेश्चन देगा आपको, है ना। तो ये देखो, इसी से ऑलवेज आप कोशिश करो कम पढ़ें और ज़्यादा लिखें। 89 का क्वेश्चन है, देखो, डिफाइन फंक्शन ऑफ मैरिज, डिफाइन मैरिज एंड फंक्शन ऑफ मैरिज आपका ये है। तो फंक्शन ऑफ मैरिज क्या होगा? अगर ये आपको यूपीएससी में पूछा तो मैरिज का फंक्शन होगा टू सेटिस्फाई सेक्स। ये फंक्शन ऑफ मैरिज है, फंक्शन ऑफ मैरिज। तो इसका हम कम पढ़ें और इससे हम आंसर कर सकते हैं। और फंक्शन ऑफ फैमिली क्या है? तो फंक्शन ऑफ फैमिली हंगर, थर्स्ट, सेक्स सबका होगा। सोशल लाइफ वाई? टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हम बताएंगे जब हम थॉट पढ़ाएंगे ना, अभी तो लग रहा है कि हम बता रहे हैं आपको, थॉट पढ़ोगे पढ़ाएंगे ना। देखो, थॉट और जनरल ये सब इंटीग्रेटेड है, लेकिन हर जगह आप क्वेश्चन करना, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। अब आ जाओ दूसरा, वाई कल्चरल लाइफ। फिर मानव ने कल्चर बनाया, कल्चरल लाइफ, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, जो भी कहें आप। और कल्चर में क्या बनाया? उसने बनाया रूल। क्या है? रिलीजन, लॉ, टेबू, कस्टम। ये क्या है? अलग अलग चीजें लगता है ना, लेकिन सबको आप मानो कि दे आर रूल्स। जैसे आप केरोसिन, इंडियन गैस, ये नेचर डिफरेंट। क्या है इसका? सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। सो देयर नेचर इज डिफरेंट, फंक्शन इज सेम। एग्री? नेचर डिफरेंट बट फंक्शन सेम, है ना? सही। आपको प्यास लगी है, यू कैन टेक जूस, कोको कोला, वाटर। नहीं, यूपी में शरबत भी चलता है, यूपी बिहार में कोई बाहर से गेट आते हैं तो शरबत दिया जाता है। तो शरबत, नेम डिफरेंट है, शरबत, कोको कोला, जूस और वाटर। नेचर डिफरेंट, फंक्शन सेम, टू क्वेंच थर्स्ट। नेचर इज वन थिंग एंड फंक्शन इज अदर थिंग्स। लाइक बाई दैट, ये रूल है, ये सब आपको सिलेबस में पढ़ना है। रिलीजन, लॉ, टेबू भी पढ़ना है, कस्टम, है ना। अब देखो, रूल और वो सब क्या है, आप ये निर्भर करता है कि पनिशमेंट किससे मिलता है। रूल जिसमें पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट किससे मिलता है ना? पनिशमेंट फ्रॉम होम। अगर पनिशमेंट सुपरनेचुरल से मिलता है, इफ पनिशमेंट कम फ्रॉम द सुपरनेचुरल, इट इज टेबू। जैसे व्हेनेवर यू गो टू टेम्पल, कहा जाता है कीप ऑफ योर शूज। आप कहेंगे नहीं हम जूता पहन ले जाएंगे, तो वहां जो होंगे कहेंगे यू विल गेट पनिशमेंट फ्रॉम सुपरनेचुरल बिकॉज यू आर वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ सुपरनेचुरल। बिहार में, यूपी में एक छठ पर्व है, उसमें बहुत सारे टेबूज होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं दैट शुड नॉट बी वायलेटेड। और अगर आपने छठ के नियमों का उल्लंघन किया तो यू विल गेट सुपरनेचुरल पनिशमेंट। तो पनिशमेंट जिसमें सुपरनेचुरल से मिलता है, दैट रूल इज टेबू। एंड इफ यू हैव द रूल, जिसमें ऐसा रूल है जिससे अभी कोविड में अभी भी लोग मास्क लगाए हैं, अगर पब्लिक ऑथोरिटी से मिलता है, पब्लिक ऑथोरिटी से आपको पनिशमेंट मिलता है,
तो इसको बोलते हैं लॉ, है ना। सो ये सब रूल ही है, बट उस रूल को हम टेबू कहते हैं, उस रूल को हम लॉ कहते हैं, और रूल ही है जिसमें अगर सोशल क्रिटिसिज्म मिलता है, इसके लिए आपको कोई ऐसा, उसको बोलते हैं कस्टम, कस्टम ट्रेडिशन को वायलेट करेंगे ना, तो उसमें सोशल क्रिटिसिज्म मिलता है। तो रूल्स हैं, रूल्स इज डिजाइनेटेड एज रिलीजन, लॉ, टेबू that depend upon the nature of punishment, clear, but all the rules. Now the question is, what is the function of rule? Why rule, है ना। अब why culture, और कर सकते हैं रूल्स। आंसर इज टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी, society, social life. क्लियर। देखो अब फिर हम यहां करें, मैन इज ए बायोलॉजिकल बीइंग, टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल नीड्स मैन हैज मेड सोशल लाइफ, एंड टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी मैन हैज मेड कल्चर. So by culture applied in applied sense are rule. Culture regulate human life. Culture is a way of life. जैसे इसको फिर हम बता रहे हैं, चूंकि एंथ्रोपोलॉजी का सेंट्रल कंसर्न कल्चर है. कल्चर का हम आपको कई क्लास लेंगे, कम से कम 6 to 7 क्लास लेंगे, सारे क्वेश्चन कल्चर का कराएंगे. थॉट में भी कल्चर पढ़ना है और ऐसे भी. कल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. एक दिन में आपको कंसेप्ट पूरा नहीं मिलेगा ये. इन होल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे आप कहते हो ना गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर आपको हर जगह लिखना है. इवन इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे इस साल का क्वेश्चन देखो, इस साल का क्वेश्चन है 21 का, आप देख लेना. डी नंबर टॉपिक है कंपलसरी. बायो कल्चरल अप्रोच इज द हॉलमार्क ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. मतलब यू हैव टू टॉक अबाउट कल्चर इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. जैसे इफ वी से दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एंथ्रोपोलॉजी, in most of the topic you have to study about culture. You have to write about the culture. Anthropology is not biology. So those coming from biology background, they should know this fact that you have to mention some cultural issues in your answer. ठीक है. अब इसका भी आंसर हम तुरंत करा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा ही होगा, हम आगे बढ़ते हैं. अभी कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना. जैसे कल्चर, मैन एंड एनिमल, मैन एंड एनिमल, एनिमल मीन्स हम यहां ले लें मंकी को. क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो सोशल लाइफ हमारा भी है और बंदर लोग का भी. मंकी आल्सो है ये सोशल लाइफ. They also live in group and they have a sense of grooming. So both have social life. What is the difference? Man has rules और यहाँ monkey no rule. If you have five monkey 20 बनाना आप दें उनको खाने के लिए, क्या होगा? द डोमिनेंट वही कैप्चर कर लेगा. द वन डोमिनेंट जो है ना वो कैप्चर ऑल. सब को कैप्चर कर लेगा और बाकी देखते रहेंगे, वो अपना खाते रहेगा, छिड़ते रहेगा, बर्बाद करते रहेगा.
The only difference between man and animal is difference of culture, difference of rule. As a human being, follow culture in all sphere of life. आप मेट्रो से आते हैं, कहा जाता है लाइन से आइए. Everywhere culture is simple way. Culture is about human. जानवरों में कल्चर नहीं होता है. And culture is about how we live. जैसे how we eat, how we write, how we play. ये सब जो रूल हैं, इसके पीछे जो रूल है ना, वो कल्चर है. रूल बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चर. जैसे यू ऑल पीपल आर राइटिंग इज ए बिहेवियर, बट द ग्रामर रूल यू ऑल आर फॉलोइंग इज कल्चर. कल्चर इज शेयर्ड. ग्रामर रूल ये नहीं है कि ये दूसरा फॉलो कर रहे हैं, यू आर दूसरा फॉलो कर रहे हैं. यू आर फॉलो द सेम ग्रामेटिकल रूल्स, सो दैट रूल इज कल्चर. क्रिकेट खेलते हैं, बट क्रिकेट का भी खेलने का नियम है. ह्यूमन हैव टू फॉलो रूल्स, हाउ टू फॉलो कल्चर. सो कल्चर इज वे ऑफ लाइफ. कैसे हम बिहेव करेंगे. कल्चर का सिंपल डिफिनेशन है हाउ वी लिव, और कह सकते हो कि वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग. कैसे हम जीते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, ये कल्चर सिंपली वे में. ऐसे बहुत सारे डिफिनेशंस हैं और बहुत बार कल्चर बात करते रहेंगे. क्लियर. हमारे सिंपल वे में देखो, आप जो लिख रहे हो ना, योर हैंडराइटिंग इज पर्सनालिटी. हैंडराइटिंग जो है ना, ये सबका अलग अलग है. द डिस्टिंक्टिव वे यू बिहेव इज पर्सनालिटी. सब्जेक्ट के अनुसार आगे बढ़े. तो ये मैन, देखो यहां अभी हमने बता दिया कि जो रूल है ना, इस रूल को हम कल्चर के तहत, कल्चर का जो फील्ड व्यू है वो है रूल्स. जैसे आपको बता दिया कि बुक व्यू ऑफ कल्चर तो मोर देन 300 डिफिनेशंस है, बट कल्चर में आप क्वेश्चन करना हाउ कल्चर वर्क्स इन सोसाइटी. फील्ड व्यू का मतलब क्या हुआ, कल्चर है ना. फील्ड व्यू ऑफ कल्चर, फील्ड व्यू ऑफ कल्चर क्या है. सिंपली हम मानेंगे कि हाउ कल्चर वर्क्स इन सोसाइटी. और क्या हुआ, कल्चर वर्क्स इन सोसाइटी इन टर्म ऑफ रूल्स. और ये रूल क्या है, ये रिलीजन आपको पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, टेबू पढ़ना है, कस्टम पढ़ना है. ये सब रूल्स हैं, ये सब को हम कल्चर कहते हैं. थोड़ा कन्फ्यूजन अभी होगा, नहीं कन्फ्यूजन है. हम और एग्जाम्पल देंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आगे क्लास क्लियर रहने दो. कल्चर कैसे वर्क करता है ये सिंपली मानो. कल्चर वर्क करता है इन टर्म ऑफ रूल, रिलीजन, लॉ, टेबू, कल्चर, टेबू, कस्टम. ये सब कल्चर. ठीक है. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, वी ऑलवेज यूज द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, बट हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स. एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन टर्म ऑफ ऑफिशियल्स. ठीक है ना. तो उसी तरह से जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन टर्म ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन का जो फील्ड व्यू है वो है ऑफिशियल्स. जैसे रोड एक्सीडेंट होता है
आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बुलाओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग, अम्ब्रेला टर्म है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ऑफिसर्स जाते हैं, जैसे ऑफिसर चाहे वो बीडीओ हो, बीडीओ, एसडीओ या डीएम, ये जाते हैं। पोस्ट आर डिफरेंट, पोस्ट्स आर डिफरेंट, फंक्शन आर सेम टू मेंटेन लाइन ऑर्डर। जैसे अभी बताया था ना कि ये रिलीजन, लॉ, ये सब डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट फंक्शन सेम है, क्या? सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना। सोचा करो आप, देखो सोचने का काम, यूपीएससी रिक्वायर थिंकर्स नॉट लर्नर, रोट लर्निंग वाले नहीं यूपीएससी करेंगे। सोचने का है काम, बी ए गुड थिंकर, हर चीज में सोचो। और पहला क्लास तो आपको थोड़ा ज़्यादा ये सब टॉपिक बता रहे हैं, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, इसलिए इसमें आपको चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने आपको क्लियर किया कि मैन, पहला जो हम मैन एंड वर्क्स बताया था कि मैन ने, अब हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि मैन बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैन इज ए बायोलॉजिकल बीइंग, और बायोलॉजिकल नीड्स हैं, और बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए हंगर है, ये सब बायोलॉजिकल थ्रस्ट, इसको पूरा करने के लिए उसने वर्क्स कई चीज़ बनाया। सबसे पहले सोशल लाइफ बनाया, सोशल लाइफ या सोशल इंस्टीट्यूशन जो कहें आप। इसके बाद सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने कल्चरल लाइफ बनाया, कल्चरल लाइफ या इंस्टीट्यूशंस बनाया, रूल्स बनाया। इस बाद जीने के लिए उसने इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ बनाया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। यही 5 डायमेंशन है मैन का। फ्रॉम हिज 2 वर्ड्स मैन एंड वर्क्स, हर्ष कोविद ने ये 5 चीज बताया, लेकिन इसको रफ में आप लिखेंगे। अब शुरू करते हैं थर्ड डिफिनेशन। क्लियर? इसको आप आंसर का पार्ट नहीं बनाएंगे, इसको रफ में छोड़ देंगे। अब यहां से जहां से आप शुरू किए थे ना, रफ खत्म हुआ, अब यहां से लिखिए थर्ड डिफिनेशन। थर्ड डिफिनेशन, ठीक है? थर्ड डिफिनेशन लिखिए, ये रफ खत्म हो गया। कमर्शियल ब्रेक इज ओवर, वी आर कमिंग द टॉपिक जहां पर हम छोड़े थे वहां फिर हमारे, है ना? थर्ड डिफिनेशन में एंथ्रोपोलॉजी is the study of man in time and space. Space says that anthropology studies man. Anthropology studies present human as well as past human ancestor. अब देखो यहां था ना स्टडी ऑफ मैन, इसमें इधर हम लोग रफ कर लेते हैं। स्टडी ऑफ मैन इन टाइम, स्टडी ऑफ मैन इन टाइम का मतलब है कि सिंस इमर्जेंस ऑफ मैन ऑन अर्थ, इमर्जेंस ऑफ मैन, जैसे आपको है ना फोसिल सिलेबस में, ये फोसिल मैन पढ़ना है आपको, रामापिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये सब है ना, ये सब हमारे पास्ट ह्यूमन एंसेस्टर हैं, तो हम उनका भी स्टडी करते हैं। यानी वन क्वेश्चन जो वहाँ सेकेंड डिफिनेशन में बच गया था, स्टडी ऑफ मैन ऑफ वेन्स, स्टडी ऑफ मैन ऑफ वेन्स, उसका आंसर क्लियर हो गया कि बी स्टडी प्रेजेंट ह्यूमन इन टाइम
इन टाइम का मतलब है कि पास्ट एंसेस्टर, ये जो पास्ट हमारे एंसेस्टर है फॉसिल, हम उसका भी स्टडी करेंगे, और प्रेजेंट जो ह्यूमन है, हम लोग प्रेजेंट ह्यूमन जो आज हम रेस के रूप में है ना, रेस पढ़ना, बी ह्यूमन एजिस्ट एज ए रेसेस, तो हम उसका भी स्टडी करते हैं। मतलब टू क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड इन हैर्ट्ज़-कोविड डेफिनेशन। पहला था कि स्टडी ऑफ मैन ऑफ वेन्स और स्टडी ऑफ मैन ऑफ वेयर, तो दीज ऑल हैव बीन क्लियर्ड कि बी स्टडी पास्ट ह्यूमन एंसेस्टर एंड प्रेजेंट ह्यूमन एंसेस्टर। ठीक है। सेकेंडली anthropology studies people all over the world. Secondly, anthropology studies people all over the world. तो स्टडी ऑफ मैन ऑफ वेयर क्लियर हो गया कि हम नॉट ओनली पीपुल ऑफ इंडिया बट वी स्टडी पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड, पीपुल ऑफ द होल वर्ल्ड। कभी आप बुशमैन ऑफ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, स्कीमो ऑफ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, तो अंडमानीज के बारे में पढ़ेंगे, तो बी स्टडी पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड, इसलिए है ना, क्लियर हुआ। तो ये थर्ड डिफिनेशन, जो सेकंड डिफिनेशन का शॉर्ट कमिंग था हर्ट्ज़-कोविद का, उसको क्लियर किया, तो ये भी लॉजिकल है। अब आइए शॉर्ट कमिंग क्या है सेकंड का। इसका शॉर्ट कमिंग ये है, शॉर्ट कमिंग ऑफ द थर्ड डिफिनेशन ये है कि एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का भी डिफिनेशन है। एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन, history is the study of man in time and space, only culturally, है ना। देखो कल्चर के तहत एवरीथिंग मैन मेड कम अंडर द परव्यू ऑफ कल्चर। कल्चर एक बहुत बड़ा शब्द है ना। कल्चर इज ए वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। कल्चर के अंदर मैनमेड जो भी चीज़ें हैं वो कल्चर के तहत आता है, और कल्चर पर अभी कई क्लासेस आपको पेशेंस रख के कल्चर तक क्लासेस कई हैं, और थॉट में भी कल्चर पढ़ना है। एंथ्रोपोलॉजी का सेंट्रल कंसर्न कल्चर है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आएगा इसके बारे में आपको बताते चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कल्चरली, जैसे हिस्ट्री में अब सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पढ़ते हैं आप, ये सब कल्चर के तहत आता है। जो भी मैनमेड चीज़ें हैं, जो वर्क्स के तहत जो पढ़े अभी इसके पहले, वो सब कल्चर के तहत। इसके पहले ये जो हम लोग ने वर्क्स किया ना, ये सब मैनमेड है। और मैनमेड जो भी चीज़ें हैं, मैनमेड, ये कल्चर के तहत आता है, और कल्चर के तहत ये सब आएगा चारों। मतलब दुनिया की एंथ्रोपोलॉजी के में अगर हम दो पार्ट में बांटें, तो पहला हो गया फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा हो गया कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आपका एक हम जिस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बनाया है। ये अंबर का जिस्ट है, वो बाजार में नहीं मिलती है वो। तो आप अंबर जो किताब है उसको फॉलो करेंगे। अंबर में भी साफ है कि मेजर जो सब डिवीजन एंथ्रोपोलॉजी का है वो दो है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा है कल्चरल। और कल्चरल के तहत सब चलाता है, सोशल भी आ सकता है, कल्चरल भी आ सकता है, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। मतलब बायोलॉजिकल और दूसरा क्या होगा कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ें। तो कल्चर इज ए वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, अम्ब्रेला टर्म है। अंडर कल्चर वो सब आएगा। मैनमेड जो भी चीज़ें हैं वो सब, ये सब मैनमेड है, और मैनमेड थिंग्स कम अंडर कल्चर। क्लियर, आगे बढ़ें।
चलो, एंथ्रोपोलॉजी मतलब अब जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन इन टाइम एंड स्पेस ओनली कल्चरली। देखिए, इन फैक्ट एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली, देखिए एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली डिसिप्लिन that studies man in time and space biologically as well as culturally, biologically as well as culturally, because human life is rooted in biology and culture both, is rooted in biology and culture both। जैसे ये जो हमारा शरीर है ना, ये बायोलॉजिकल है, लेकिन अगर इफ वी डू नॉट वियर क्लॉथेज वी आर एज इक्वल टू एनिमल्स। सो व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, अगर ये हम कपड़ा नहीं पहने तो वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स। सो व्हाट मेक अस ह्यूमन, कल्चर। सो ह्यूमन लाइफ इज रूटेड इन बायोलॉजी एंड कल्चर, ठीक है ना। और यही एस्पेक्ट आपको उस क्वेश्चन में भी है। क्या आपका जो अभी क्वेश्चन लिखवाए थे, बायोकल्चरल अप्रोच द हॉल मार्क ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये ध्यान रखना होगा कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल एंड नॉट एक्सक्लूसिव कल्चरल। आपको कल्चर में ही बायोलॉजी की बात करना है और बायोलॉजी में भी कल्चर की बात करना है। जैसे हम इंसेस्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो क्यों भाई बहन में शादी दुनिया में नहीं होती है, भाई बहन में शादी पर रोक लगाया गया है, टेबू लगा हुआ है, इसको पढ़ना है आपको, इंसेस्ट टेबू। तो इंसेस्ट पर क्यों रोक लगाया गया, तो वहां हम सोशल रीजन के साथ साथ बायोलॉजिकल रीजन भी देंगे। तो बायोलॉजिकल रीजन आपको कल्चर टॉपिक में भी देना है और बायोलॉजिकल टॉपिक में भी आपको कल्चर की बात करना है, समझ गए ना। क्योंकि ह्यूमन लाइफ रूटेड इन बायोलॉजी एंड कल्चर बोथ, इसलिए आप ये अप्रोच को पूरी जगह लागू करो, ये नहीं कि यहीं तक है। एंथ्रोपोलॉजी जस्ट लाइक साइंस, जैसे फिजिक्स है ना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते हो तो इसको जनरल फिजिक्स का है, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़े। हम आईएससी तक ही साइंस पढ़े हैं, लेकिन हम साइंस के अनुसार ही पढ़ाते हैं। हम चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ की बात भी करेंगे, आपको समझाएंगे। हम साइंस में जो भी पढ़ा है उसको पूरी तरह एंथ्रोपोलॉजी में यूज करते हैं, और है लॉजिकल अप्रोच साइंस का है, और वही हम अप्लाई करते हैं पढ़ाने में भी, ठीक है। हर जगह सोचो, आप नहीं सोचोगे तो भूल जाओगे। इसलिए ऑलवेज हैव ए क्वेश्चन, सिंपल चीज, वाई सोशल लाइफ, वाई कल्चर लाइफ। तो सोशल लाइफ ने कहा, अब फिर हम बैक आ रहे हैं कि 5 हमारे जो बायोलॉजिकल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए सोशल लाइफ बनाया गया, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कल्चर लाइफ बनाया गया, और फिर इकोनॉमिक लाइफ भी है, पॉलिटिकल लाइफ भी है। सो 5 डायमेंशन है। चेंज कीजिए। अब हम अभी 3 डिफिनेशंस को हमने एनालाइज कर दिया। तीनों का क्या, देखो हमने आपको शुरू में 5 डिफिनेशन लिखाया था, शुरू में ये 5 डिफिनेशन लिखवाया था, है ना। और हमने ये 3 डिफिनेशन को एनालाइज कर दिया। एंथ्रोपोलॉजी या स्टडी ऑफ मैन है ना, लेकिन क्या स्टडी करता है क्लियर नहीं था। हर्शकोविच ने थ्रू दिस डिफिनेशन क्लैरिफाई किया कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी मैन फ्रॉम 5 पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड कहा कि ठीक है 5 पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, लेकिन बी स्टडी नॉट ओनली लिविंग ह्यूमन, बी स्टडी पास्ट ह्यूमन एंसेस्टर आल्सो, है ना। तो इस तरह से ये 3 डिफिनेशन हमने राइज किया। अब ये चौथा बच गया, लिखिए। सिंस एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड, since anthropology studies people across the world, so Kluckhohn
So Kluckhohn has rightly remarked. So Kluckhohn has rightly remarked. Kluckhohn ने सही कहा है. Kluckhohn एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. Kluckhohn has rightly remarked, anthropology is the mirror of man. Anthropology is the mirror of man. आईना है of man. मतलब just like mirror reflect your face, anthropology reflect the diverse faces of humanity. Sometime you study about Bushman जो अफ्रीका में रहता है कलाहाड़ी में. Sometime you study about the Eskimo. तो mankind exists in diverse appearance, language, culture. बहुत सारे फॉर्म्स हैं. बी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी प्रेजेंट यू रिफ्लेक्ट यू द फेसेस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी. इसलिए क्लूकहोन ने इसको मिरर कहा है. टू सम अप, एक हम अपना कंक्लूजन दे देंगे, है ना. टू सम अप या इन कंक्लूजन वी कैन से दैट एंथ्रोपोलॉजी इज holistic study of man, in time and space, है ना. holistic man across the world. या इसमें टाइम स्पेस को आप ये भी कर सकते हो. एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन अक्रॉस द वर्ल्ड. चलो ये आपका निष्कर्ष शॉर्ट में दे देंगे. होलिस्टिक का मतलब है फ्रॉम 5 पॉइंट ऑफ व्यू, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो ये आपका खत्म हो गया. अब इसको हम एक नेक्स्ट आपको एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस. तो दिस वुड बी माई अप्रोच. हम फ्रॉम द वेरी क्लास आपका आंसर राइटिंग अप्रोच पर फोकस करेंगे और उसके साथ साथ अन्य चीज़ों को भी क्लियर करेंगे. क्लियर, आगे बढ़ें, हम आपको और एक्सप्लेन कर दें. ऐसे तो रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस पूरा हम एक क्लास लेंगे दो, लेकिन अभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी और विषय में क्या संबंध है. शॉर्ट में 2-3 मिनट में देखो. एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली डिसिप्लिन. एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली डिसिप्लिन. हम इधर सब्जेक्ट रखें. एंथ्रोपोलॉजी के और सब्जेक्ट में क्या तुलना कर दें आपको शॉर्ट में. देखो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये सब विषय में अगर हम देखें तो ये 5 डायमेंशन है. बायोलॉजिकल, दूसरा हो गया सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. तो एंथ्रोपोलॉजी में हम इस सारे डायमेंशन स्टडी करते हैं. पूरा सिलेबस आपका यही 5 डायमेंशन में बटा हुआ है. यू हैव टू स्टडी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन, जिसमें आपको इवोल्यूशन पढ़ना है ना. बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन पढ़ना है आपको. एस्पेक्ट ऑफ मैन सिलेबस आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद कर जाएं, क्योंकि हम इंटरलेशन ज़्यादा कर दिखलाएंगे आपको. इंटर कनेक्शन एमंग द टॉपिक्स, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, एट लीस्ट यू नो योर सिलेबस. सिलेबस इज योर प्रोग्राम. सॉल्यूशन हम देंगे उसका. सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी में, देखो ये क्वेश्चन आपको पूछना नहीं पड़ेगा और सब हमको क्वेश्चन याद है. ये क्वेश्चन आपको पूछना नहीं पड़ेगा. टॉपिक के साथ इस पर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आई विल डिस्कस एंड डिक्टेट
आप आंसर क्या लिखोगे अभी 1 साल 5, है ना। ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम पुराने का कर देंगे क्लास में ही। एट द एंड ऑफ द क्लास यू हैव फॉर्मेट ऑफ मोर देन 500 क्वेश्चंस। बहुत सारे टेस्ट सीरीज के लड़के आते हैं, भाई देखो अब मेरा इतना टेस्ट सीरीज, ये सब जो है ना केवल ठगने का धंधा है। ये साइंसेस में जो सोशल साइंस जो एक्चुअली साइंस है, इसमें तो फैक्ट रहेगा, लड़का लिख देगा। इसमें क्या टेस्ट सीरीज का है भाई ज़्यादा, तो लोग पढ़ाते नहीं, पढ़ाते समय कहें टेस्ट सीरीज में बताएंगे, टेस्ट सीरीज आएगा तो अलग से फीस है और सबको टिक मार कर देता है कब, या लड़के से दिखवाता है। यहाँ टेस्ट सीरीज का टीचर टेस्ट नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं। हमको भी बहुत लोग सलाह देता है कि स्टूडेंट रख लीजिए, आपको आप टेस्ट चला करा दीजिए। हम कि सब तो अनइथिकल है। लड़का तो कहेगा कि सर ने चेक किया है और हम करेंगे चेक नहीं। हमको इतना, हम होलिस्टिक पढ़ाने विश्वास करते हैं। कितना लड़का कहीं दूसरी जगह से आएगा, हम नाम नहीं लेंगे, तो हम बोले जितना तुम एक थोड़ा लिखोगे उससे ज़्यादा हमको लिखना पड़ जाएगा। क्योंकि जहाँ पढ़ाई ही नहीं हुई, कुछ टीचर डॉक्टर हैं वो पढ़ा रहे हैं, या बायो बैकग्राउंड के हैं वो पढ़ा रहे हैं, इंडियन पढ़ाते ही नहीं है, सोशल पढ़ाते नहीं है। वो ज़्यादा ओवर 70% सिलेबस जो है वो सोशल है, चाहे वो सेकेंड पेपर ट्राइबल रिलेटेड हो चाहे फर्स्ट पेपर हो। और वो बायो बैकग्राउंड वाले क्या करते हैं, 70% बायोलॉजी, 30% सिलेबस है फिजिकल, उसमें 70% टाइम देते हैं, जो 70% है उसको 30% टाइम देते हैं। डबली लूजिंग फॉर स्टूडेंट्स। इसलिए हम आपको सारा क्वेश्चन क्लास में डिटेक्ट करा देंगे कि कैसे लिखना चाहिए, क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब यही। माने 3 महीने में हम 15 दिसंबर तक आपका खत्म लिख के देंगे और छोड़ेंगे भी टॉपिक नहीं। हम आपको ये नहीं हुआ कि हाँ पढ़ लेना तुम, ऐसा नहीं, वो सब हम पढ़ाएंगे और ख़त्म भी करेंगे 15 दिसंबर तक। चलो देखो, इसमें सोशलॉजी और हिस्ट्री में क्या है, इसमें ये सब नहीं पढ़ा जाता है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है सोशलॉजी में। सोशलॉजी में जेनेटिक इवोल्यूशन टॉपिक नहीं है। ओनली द बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी द सब्जेक्ट, जिसमें बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल सभी का। साइकोलॉजी में आपको ये 3 है, ये दोनों इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इग्नोर किया जाता है। क्योंकि साइकोलॉजी में पर्सनालिटी मेन फोकस होता है और ह्यूमन पर्सनालिटी जो है ना प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। बच्चा में वो बायोलॉजिकल इंडोमेंट शुरू से अलग होता है हर बच्चों में। कुछ बच्चे डल होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो ज़्यादा इनर्जेटिक होता है, ज़्यादा नटखट होता है, और कुछ बच्चा थोड़ा शांत होता है। पैंट उनको सहूलियत होती है बच्चे जब शांत रहते हैं तो, लेकिन बच्चा शांत समझो कि अब नॉर्मल है बच्चा। वो बच्चा बदमाश है समझो कि वही नेचुरल है, वही सही बच्चा है। तो बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो तो कुछ जेनेटिक है और कुछ लाइफ एक्सपीरियंस जो है ना उसका वो सोशल और कल्चरल है। तो वो दो साइकोलॉजी में दोनों। इकोनॉमिक्स का मोर फोकस इकोनॉमिक पर है, पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल पर। मतलब एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली डिसिप्लिन विच स्टडीज 5 एस्पेक्ट ऑफ मैन। क्लियर? आपका सिलेबस अपना पढ़ के याद आना। सिलेबस आपको वर्चुअली याद होना चाहिए कि हाँ इस पॉइंट 1 में ये है, 2 में ये है। हर टॉपिक का सिलेबस आप 2 बार 4 बार लिख के फेंक दो। यू नो योर प्रॉब्लम, सोल्यूशन देना मेरा काम है। और हम आगे जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे हम फैमिली, लेकिन हम ये बताएंगे कि फैमिली में जो आपने पढ़ा इसका यूजेज कहाँ कहाँ हो सकता है। हम आपको मिनिमम आप पढ़ें, मैक्सिमम उसका यूज करें। क्योंकि आईएएस में आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अभी देखते हैं कुछ बच्चे जो है ना पूरा पढ़ेंगे। एक लड़की, हम आपको 16 की बात करते हैं, ज्योति नाम था, वो आई बहुत सा लेकर के और रख दी मेरे टेबल पर। एकदम उसके आँख से आंसू गिर रहा है कि सर मैंने बहुत मेहनत किया है, सब जगह से क्लियर किया, लेकिन मैं आंसर नहीं लिख पाती हूँ। तो हम हंस रहे थे, वही कि सर आप, हम रो रहे हैं आप हंस रहे हैं। हम भाई डॉक्टर पेशेंट से अगर ये कर लेगा तो क्या इलाज करेगा, हम तो जान ही रहे हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। अब एक ही उपाय है, तुम क्लास करो। और वो क्वालिफाई की
एक दिन क्लास में जब 15 दिन क्लास कर ली तो मुस्कुरा रही थी, हम तो बोले कि तुम मुस्कुरा रही हो सर, कैसा लग रहा है तुमको? तो कही कि सर देख नहीं रहे हम क्लास में मुस्कुरा रहे हैं, अब हम आंसर लिख लेंगे। और वास्तव में वो क्वालिफाई की, फाइनली नहीं हो पाया, दैट इज अदर इशू, चूंकि वाई ही बहुत लेट। हाँ, सचिन पवार वो ज्योग्राफी छोड़ के एंथ्रोपोलॉजी में आया, 1 महीना में पूरा खत्म किया। वो सुबह सुबह चाय लेकर आता था, सर पढ़ा दीजिए सर, किसी तरह से हम लोग का कोर्स खत्म कर दीजिए, बड़ा ओबीडियंट लड़का। और 4th टाइम ज्योग्राफी से वो अपेयर हुआ, 2 बार इंटरव्यू दिया, उसका वीडियो भी है यूट्यूब पर। सचिन पवार भी IAS है उड़ीसा में, 282 मार्क्स आया। तो 1 महीना पढ़ के भी 282 आया और फाइनली सेलेक्टेड हो गया। अभी वो तो ये है हमारे क्लास की। अब इवन लड़का आता ही है अंतिम में, तो हम क्या करेंगे? सच, अब एक शुभंक मिश्रा, उसका वीडियो देखना, उसने कहा है कि सर अगर 25 केस स्टडी लिखवाएंगे ना तो उसको आपको 100 जगह पर यूज करके दिखला देंगे। जैसे हम पढ़ाएंगे फैमिली, पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन टॉपिक, लेकिन आपको रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाएंगे तो रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है, परिवार का पहला फंक्शन है बच्चे को जन्म देना, और ये चिल्ड्रेन जो बॉन्ड है ना, चिल्ड्रेन बॉन्ड, ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है, सोसाइटी का कंटिन्यूटी बना रहता है। अब यही रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है 11.3 फिजिकल में, मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आपको पढ़ना है फैमिली, और फैमिली का जो पढ़ेंगे आप ना, ये आपको 11.3 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। और यहां भी हम रिप्रोडक्शन, यहां लिखा हुआ है फर्टिलिटी, तो जिसको फैमिली में रिप्रोडक्शन के रूप में आप पढ़ेंगे, दैट सेम थिंग इज स्टडी एज ए फर्टिलिटी। कहां? 11.3 टॉपिक में। और यही फर्टिलिटी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी पढ़ना है सेकेंड पेपर में। तो मेरा सलाह यही रहता है कि लास्ट में मार्जिन आप छोड़ के रखेंगे, है ना, और वहां पर आप देख लेंगे कि अभी इस डाटा का यूज टॉपिक नंबर इसमें भी है, सेकेंड पेपर में टॉपिक नंबर 2 में भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो इस तरह से लिंकेज आपको हम दे देंगे यहां, किस टॉपिक का जो डाटा है, मतलब आप यही सोचो, ये क्रिएटिव, इसको कहा था क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? हाउ मेनी यूजेज यू कैन सजेस्ट ऑफ ए थिंग। जैसे घर में जो काम लोग करते हैं ना, वो लोग भी क्रिएटिव हैं। जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो का क्या क्या बन सकता है? हमारे बिहार में उसे भुजिया भी बनाते हैं, बचका भी बनाते हैं, चोखा भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल सेम है, लेकिन उसमें मसाला का कॉम्बिनेशन अलग अलग दे करके और कई वैरायटी बनाते हैं ना। चिकन का भी बहुत तरह से, चिकन दो प्याजा होटल में जाओगे तो कितना वैरायटी ला दे रहा है कि भाई। तो ये सब क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी यूपीएससी में इनसाइट लर्निंग आपको देखना। यूपीएससी का एम क्या है? टू टेस्ट द इनसाइट ऑफ द सब्जेक्ट। व्हाट इज इनसाइट लर्निंग और रोट लर्निंग? दे आर 2 टाइप ऑफ लर्निंग। रोट लर्निंग, किसी बच्चे से पूछो कि एक पोएम सुनाओ, वो शुरू कर देगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर। कहो कि बी से सुनाओ, नहीं अंकल हम शुरू से सुनाएंगे, वो बी से नहीं सुना सकता है, क्योंकि उसकी जो मेमोरी है सिक्वेंशियल मेमोरी है, रोट लर्निंग है। यूपीएससी डज नॉट टेस्ट दिस सॉर्ट ऑफ मेमोरी, इनसाइट लर्निंग का टेस्ट करता है। इनसाइट लर्निंग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से आया है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होलिस्टिक। देखो, इसका स्टडी कोहलर ने किया। कोहलर ने एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, उसको एक रूम में छोड़ दिया, 4 कोने पर बॉक्स रख दिया, केला को फैन के सीलिंग से लटका दिया। अब जब उसको भूख लगा, ही स्टार्टेड जंपिंग फॉर द बनाना, लेकिन इतना हाइट एडजस्ट था कि हाउ वेरी जंप ही कैन नॉट रीच द बनाना। लास्ट में वो गुस्से में आ गया, स्टार्टेड थ्रोइंग द बॉक्सेस, एंड सडनली वन बॉक्स गॉट ओवर द अदर, हाइट रेज्ड एंड ही गॉट अ हाई स्प्रेस। अच्छा, तब तो इसी के बाद एक करके हम क्या, यही क्रिएटिविटी है, यही इनसाइट है। इनसाइट क्या हुआ? डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू अनरिलेटेड फेनोमेना। बनाना हैंगिंग कर रहा है फैन के सीलिंग से,
बॉक्सेस किनारे है, तो बॉक्सेस और बनाना के बीच रिलेशनशिप डेवलप करना इनसाइट है। आपको क्या करना होगा, इसी तरह का इनसाइट आपको डेवलप करना होगा। जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ाएंगे फैमिली, लेकिन फैमिली टॉपिक ये 3 टॉपिक नंबर होगा, है ना, लेकिन ये 2.3 है, लेकिन इस डाटा का यूज हम कहाँ करेंगे, 11.3 में फर्टिलिटी में, और कहाँ करेंगे, सेकेंड पेपर में। तो ये इनसाइट इसी तरह से हम आपको बहुत सारा टॉपिक फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेपर, और क्वेश्चन कराएंगे सेकेंड पेपर का, और आप कहोगे कि हाँ आंसर हो गया। इंटेलेशन है फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर में, 30% आपको फर्स्ट पेपर में 1 महीना 10 दिन लगेगा, सेकेंड पेपर में 25 दिन, और फिजिकल में 25 दिन। लेकिन हम फर्स्ट पेपर में डूज एंड डोंट सब डिस्कस करना पड़ता है, विषय का नेचर समझाने से लेकर के और सब चीज़। सिर्फ फर्स्ट पेपर में ज़्यादा टाइम लगता है, सेकेंड पेपर में आपको कहे ना कि 30% हम फर्स्ट पेपर में भी पढ़ाते हैं, और भी रिलेटेड टॉपिक एक जगह। जैसे फोसिल पढ़ना है 1.6 में और पढ़ना है सेकेंड पेपर में, तो क्यों नहीं हम एक बार कराएंगे। समझ ये हो गया क्लियर। थोड़ा सा और बताते हैं इसमें, और इसके बाद अभी तो ये सब होते ही रहेगा। देखो ये 5 हम जनरल टॉपिक में, जनरल क्वेश्चंस में जैसे आता है कि इफेक्ट ऑफ कल्चर कॉन्टैक्ट ऑन ट्राइबल्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 1976 में पूछा है, 1981 में भी आया है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अराइजिंग ऑफ द कल्चर कॉन्टैक्ट ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। आप कुछ नहीं जानते हो, देखो द मोर जनरल द मोर एप्लीकेबल। साइंस में द मोर जनरल द मोर एप्लीकेबल, जो जनरल रूल है ना वो तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन है, हम 5 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो जो जनरल क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी का कि कल्चर कॉन्टैक्ट का प्रभाव क्या ट्रैवल पर पड़ा है, कुछ नहीं जानते हो, तो विषय का जो अप्रोच है 5 लाइन पर कर दो। यू थिंक ऑन 5 लाइन। ये छोड़ो कि हम आज पहला दिन पढ़ रहे हैं, उसे क्या मतलब है। साइंस में पहला दूसरा कुछ नहीं होता है। हम अप्रोच, जैसे आप रनिंग ट्रेन में ब्रेक लगता है तो आप कहते हैं कि हम आगे झुकते हैं, क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आफ्टर गन शॉट हम पीछे झुकते हैं। तो ट्रेन में हम आगे झुकते हैं या गन शॉट के बाद हम पीछे झुकते हैं, दे आर डिफरेंट फिनोमेना बट बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द सेम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। साइंस में अप्रोच मैटर करता है। तो जब एंथ्रोपोलॉजी में हमारा विषय, देखो जो होल का सिद्धांत है ना वो पार्ट में भी लागू होगा। जब एंथ्रोपोलॉजी, अगर हम विषय ये होल है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, तो इसका जो पार्ट जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम 5 लाइन पर हम सोच सकते हैं। हमारा विषय 5 लाइन पर सोचता है, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जनरल क्वेश्चन में हम 5 लाइन पर लिखेंगे। जैसे पूछता डिफॉरेस्टेशन का ट्राइबल पर क्या प्रभाव पड़ा, बिना सोचे कह दो कि 5 प्रभाव पड़ा। शिकारी ट्राइबल, आइए नहीं, आप कहो कि हंटिंग ट्राइबल का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। ये आपको ये नहीं हम करें कि तुमको यही करें, हम यही लिखवाते हैं भी, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी बातें जो भी हम कहते हैं आप देखोगे, ये नहीं है कि आपको हम बोल रहे हैं तो आप ये नहीं कि हाँ आपको एंथ्रोपोलॉजी एक इफेक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टैक्ट ऑन द ट्राइबल। ये देखो, ये आपको कल्चर प्रॉब्लम से शुरू किया, चूंकि एंथ्रोपोलॉजी ये 5 इफेक्ट ऑफ एग्जामिन इम्पैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल ऑन द सोशल इंस्टीट्यूशन, ये 2013 का क्वेश्चन है। पहले का क्वेश्चन था इफेक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल ऑन ट्राइबल, ये आपको 81 में ही पूछा है, 76 में पूछा है। हम 5 अप्रोच की बात आपको बताए। ये देखो, ये कल्चरल अप्रोच है, कल्चरल प्रॉब्लम, इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम,
तो कल्चरल पहले बात करेंगे, इसके बाद ये 5 प्रॉब्लम की बात है ना, जैसे रिलीजन ये सब बातें हो रहा है, ये सब को सोशल प्रॉब्लम है ना, ये नहीं कि बात कर रहे हैं, वो आगे पढ़ाएंगे भी सेकंड पेपर में। सोशल के बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के बाद देखो पॉलिटिकल और बायोलॉजिकल। ये ऐसा नहीं है कि हम बोल के निकल गए, नो, हम प्रूफ करेंगे और सारे क्वेश्चन प्रूफ करेंगे इसी में। आपको हंटिंग ट्राइबल आपको पूछ देता है कि हंटिंग या ट्राइबल की समस्याएं क्या है, कुछ नहीं जाओ तो 5 लाइन पर बात करो आप। मतलब जनरल क्वेश्चन जो भी है वो विषय का जो जनरल अप्रोच है उससे हम आंसर कर देंगे, चाहे पहला दिन करो क्लास चाहे दूसरी, हार्डली मैटर्स। हमारा विषय का है कि हंटिंग ट्राइबल का देता है कि प्रॉब्लम ऑफ हंटिंग ट्राइबल्स, ऑफ हंटिंग ट्राइबल, या पूछता है प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो मेरा सुझाव क्या हुआ कि आप इसको 5 लाइन पर करो। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब देखो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या देंगे, हंटिंग ट्राइबल पहले हंट करते थे और हंट से उनको मिलता था मीट, और ये फूड गैदरिंग करते थे, फूड गैदरिंग, और फूड गैदरिंग से उनको क्या मिलता था, रूट, फ्रूट, ट्यूबर। यानी ये मीट से उनको प्रोटीन और रूट, फ्रूट, ट्यूबर से उनको मिलता था विटामिन। मतलब उनका जो भोजन था उसमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा ज़्यादा थी। क्या प्रॉब्लम हुआ, जब डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल कट गया, या फॉरेस्ट रेगुलेशन आ गया कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ लागू हो गया 1980 में, जंगल में आप नहीं जा सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो, है ना। अब वो लोग आ गए नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट में। हम बताएंगे महाराष्ट्र के कटकरी, इरला, और सब एविडेंस के साथ बात करेंगे। महाराष्ट्र के कटकरी ईंट भट्ठे मालिक के अंदर काम करने लगा और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसको स्वास्थ्य रीजन के खाने पीने के लिए या बीमारी दिखाने के लिए ईंट भट्ठे मालिक से, ब्रिक किल्न ऑनर से लोन लेना पड़ा और उन लोगों को मजदूरी करना पड़ रहा है, बहुत बाउंडेड लेवल का। तो इसका जो भोजन में बदलाव आया, क्या बदलाव आया, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अब उनमें 90% बढ़ गया है, और बीमारियां, क्वासियोकर से बीमारी से मर रहे हैं लोग। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट क्या हुआ, सोशल प्रॉब्लम या इफेक्ट, सोशल प्रॉब्लम कहो या इफेक्ट, पहले जंगल में जाता था तो ग्रुप में जाता था, कलेक्टिव लाइफ था और शेयरिंग का सेंस था। अगर किसी को भी शिकार मिल गया तो सब लोग शेयर करता है ना। कोरबा में डीएन मजुमदार ने स्टडी किया कि कोरबा में अगर हंटिंग हुआ किसी के तो फिस्टिंग होल विलेज में होता था। हंटिंग इज फॉलोड बाय फिस्टिंग इन द होल विलेज एंड केयर इज टेकन दैट मीट डिस्ट्रीब्यूशन में एवरी फैमिली हैव सम शेयर ऑफ मीट, नो वन इज लेफ्ट। ये ध्यान रखा था किसी को ऐसा ना हो कि ना मिले। मतलब ट्राइबल में उनका शेयरिंग का सेंस होता है, सेविंग का नहीं। तो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी था, है ना। लोग ग्रुप में जाते थे, कलेक्टिव लाइफ था, कॉपरेशन बेस्ड लाइफ था उनका। क्या प्रभाव पड़ा, जंगल कटने के बाद वो मजदूरी करने लगा अलग अलग, और इंडिविजुअल का सेंस आ गया, सेविंग का सेंस आ गया, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेबर हो चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर हो। जो कमाएगा वो खाएगा, जो नहीं खाएगा, नहीं कमाएगा नहीं खाएगा, वो भूखे मरेगा। तो नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट में आने के बाद उनका जीवन सोशल लाइफ जो था, उसका कलेक्टिव लाइफ था, वो इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ में बदल गया। और हम इसमें केस सही देते हैं, ट्राइबल का एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ते हैं। कल्चर में क्या चेंज किया उनका कि पहले जब जंगल में रहते थे तो जंगल के देवी देवताओं का वो पूजा करते थे। अब जंगल ही नहीं रहेगा तो उसका बिलीफ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग हिंदू सावन महीने में बेलपत्र चढ़ाते थे,
अब एक जनरेशन शहर में आ गया तो उसके बच्चे जानेंगे कि बेलपत्र क्या होता है? नहीं जानेंगे। हो सकता है जनरेशन 2 जनरेशन के बाद वो विश्वास खत्म हो जाएगा। तो उनका कल्चरल बिलीफ, उनका म्यूजिक, डांस सब जंगल से जुड़ा हुआ था। अब जंगल के नहीं रहने से उसका जो बिलीफ सिस्टम था वो खत्म हो रहा है। इकोनॉमिक लाइफ भी खत्म हो रहा है। हंटिंग जब करना ही नहीं है तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो था हंटिंग फॉर वो भी खत्म हो रहा है, और पॉलिटिकल सिस्टम भी था वो भी उनका खत्म हो रहा है। ये सब हम लिखवाएंगे, ऐसा नहीं हम कह के निकलेंगे नहीं। आप देखो ये क्वेश्चन भी हमने जो कराया है उसमें ये 5 डायमेंशन ये नहीं है, ये सब जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन ट्राइबल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और फिर केस स्टडी ट्राइबल कोरबा की बात किया, वो सब केस स्टडी के साथ, क्योंकि यहाँ एम्पिरिकल डाटा देना पड़ता है, किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहाँ स्टडी किया। और अभी कटकरी ऑफ महाराष्ट्र ये सब का एग्जाम्पल देते हुए, तमिलनाडु का इरुला, केरल का पानियन, ये सब का। और ये सब स्टडी ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने सब तीनों का अध्ययन किया है, और 2002 में ये पार्लियामेंट को सितंबर 2002 में रिपोर्ट दिया, उसका डाटा हम दिखाते हैं, लिखाते हैं। ये नहीं कि हाँ जो मैंने ऐसे बोला, नहीं, केस स्टडी ऑथेंटिक होना चाहिए। वो स्टडी क्या हुआ देखो। फिर सोशल इम्पैक्ट है, सोशल प्रॉब्लम या इम्पैक्ट डिफॉरेस्टेशन है ना, और डिफॉरेस्टेशन पहले क्या था, बाद का क्या था। और फिर कल्चरल इम्पैक्ट, देखो एक कल्चरल इम्पैक्ट है, और उसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, और फिर बायोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ये 5 लाइन पर जो है ना, ऐसा नहीं है, ये सब सेकेंड पेपर में ये सब देखो। फिर बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो ये 5 लाइन पर हम जनरल, जैसे साइंस में द मोर जनरल द मोर एप्लीकेबल, तो जो जनरल अप्रोच है एंथ्रोपोलॉजी लुक सोसाइटी इन टर्म ऑफ 5 डायमेंशन, तो 5 डायमेंशन में हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। अब देखो जनरल क्वेश्चन से अगर हम पर्टिकुलर पर आएंगे, जनरल हम 5 लाइन पर सोचते हैं, और अब हम आते हैं जनरल क्वेश्चंस में। जनरल क्वेश्चन में तो हम 5 अप्रोच देंगे, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए साइंस का अप्रोच है ना, तो आप जैसे साइंस में आप फार्मूला अप्रोच का यूज करते थे और कई प्रॉब्लम को दूर करते थे, वही अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी का है। एंथ्रोपोलॉजी जस्ट लाइक साइंस। अब देखो ये 5 अप्रोच है। अगर आपको, चूंकि अब समस्या ये हो रहा है, ये T20 हो गया है, आप 5 पढ़ के गए हुए हैं, आपको पूछ देगा 1 पर। जैसे कल्चर इंपैक्ट हमने बताया ना कि 5 इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन 2013 का जो क्वेश्चन है वो कहा है कि केवल कल्चर पर बताइए। क्योंकि अब तो 150-200 वर्ड में लिखना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया। तो ये देखो, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑन सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्राइबल पीपुल विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब क्या कर रहा है कि सोशियो कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर इंपॉर्टेंट है, तो कल्चर कह रहा है कि उसका ट्राइबल के सोशियो कल्चर कैसे इंस्टीट्यूशन प्रभावित हुआ। ऐसी स्थिति में मतलब जैसे अब जनरल क्वेश्चन उस टाइप का नहीं आ रहा है, अब 150 वर्ड में कर दिया, तो ये 3 देखो, ये बायोलॉजिकल, सोशल, अगर 3 इंपॉर्टेंट पूछेगा, देखो अब क्या करना है, रैंकिंग ऑफ फैक्टर करना है, रैंकिंग ऑफ फैक्टर्स। जैसे अब किसको, मतलब आप अपने आंसर को 3 पार्ट में बांट करना होगा। तुम्हारे पास जो भी कलेक्टेड फैक्ट हैं उसको 3 तरह से एनालाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने कलेक्शन किया है फैक्ट को, लेकिन जो जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लिखना, वो अब, उसके बाद मोर इंपॉर्टेंट और उसके बाद इंपॉर्टेंट। चूंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया, पहले 8 क्वेश्चन आते थे, अब आ दिया 19 क्वेश्चन लिखना है। इसलिए रैंकिंग, जैसे आप T20 में रैंकिंग करते हैं ना कि ओपनर में ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा। और कभी कभी धोनी के समय देखते थे टीवी, है ना, तो उसमें था कि नहीं धोनी अपने चला था कि नहीं अब मैच जिताना है, तो चलो हम ही अब मार देते हैं, दूसरा कौन जाएगा। तो रैंक वो अपना तोड़ करके भी, उस तरह से आपको भी डिसीजन ये करना पड़ेगा कि नहीं इस फैक्टर को यहाँ लिखना जरूरी है। तो 5 फैक्टर में अगर 3 हम इसको और इसको छोड़ सकते हैं, क्यों,
ये भी रीजन बताएंगे, नहीं कि आप मान जाना। इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा फोकस क्या है, ट्राइबल, और ट्राइबल लोग जंगल में रहते हैं, ये ट्राइबल पीपुल हमारा फोकस है। एंथ्रोपोलॉजी इज मोर अबाउट ट्राइबल, और ट्राइबल में इकोनॉमिक इशू इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ट्राइबल में व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लिविंग, कॉपरेशन, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया कैसेट बेचता है, क्योंकि मेट्रो में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसा। लेकिन पैसा देके जंगल में आपको रख दिया जाए तो क्या करेंगे पैसा आप? मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग इन द फॉरेस्ट। देखो आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो अपने अंदर ट्राइबल को भी आप दिमाग में रखा करो। ट्राइबल जैसे केवल किताब में नहीं है, ट्राइबल को बिल्कुल अपने लाइफ का पार्ट बना लो। ट्राइबल कहाँ रहता है? जंगल में। फिर हम और ट्राइबल पर बात करेंगे। अब ये 3 इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स छोड़ सकते हैं क्योंकि हम फोकस हमारा ट्राइबल में है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। अगर 2 डिवीजन एंथ्रोपोलॉजी का कहा जाए, 2014 का क्वेश्चन है ये, मेजर डिवीजन, तो हम बताएंगे बायोलॉजिकल और सोशल, बायोलॉजिकल और कल्चरल, और एक सेंट्रल कंसेप्ट एंथ्रोपोलॉजी का कल्चर है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब है कल्चरल एक्सपर्ट। जैसे देखो हर विषय, बायोलॉजिकल के लिए जूलॉजी विषय है, सोशल के लिए सोशलॉजी विषय है, सोशलॉजी विषय है, इकोनॉमिक्स विषय है, कौन सा ऐसा विषय, पॉलिटिकल साइंस विषय है, कौन सा ऐसा विषय है जहां कल्चर फोकस रूप में, कल्चर मेन रूप से स्टडी किया जाता है, ये है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी को कल्चरोलॉजी, कल्चर इसका फोकस है। देखो कल्चर हवा में नहीं है, धर्म कहाँ है? नॉट इन द एयर। कल्चर सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सोशियो कल्चर वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन कल्चर भी तो एक है ही ना, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सब कल्चर में आता है। लेकिन कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन द एयर। कल्चर इज एसोसिएटेड विद द सोशल सिस्टम। जैसे हमको हिंदू रिलीजन जाना है, तो हिंदू धर्म जानना है, तो वी हैव टू गो टू हिंदू विलेज। अब वहाँ देखना होगा, ओवर द ईयर्स रहना पड़ेगा 1 आध साल, और उसको देखना होगा कि लोग सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं, कौन सा पर्व मनाते हैं, किस देवता का पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, तब आप हिंदू धर्म को समझ पाएंगे। मतलब हिंदू रिलीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन द एयर, दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी एंड कल्चर इंटरट्विन्ड है। जैसे एक सिक्का का हेड और टेल, अगर उसको आप सिक्का को 2 भाग में बांट दिए तो कोई नहीं लेगा उसको, तो उसका एग्जिस्टेंस तभी है जब दोनों एक साथ है। उसी तरह से सोसाइटी, नॉन सोसाइटी इज विदाउट कल्चर। सोसाइटी है तो कल्चर भी है। कल्चर एंड सोसाइटी आर इंटरट्विन्ड, ये दोनों इनसेपरेबल है। तो सबसे पहले कल्चर का कंसेप्ट एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर कई क्लासेस होगा, चलते रहेगा ये सब। थोड़ा थोड़ा टेंशन आपको आज ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि कल्चर पर मैंने बताया, पूरा तो बताया नहीं, अब थोड़ा थोड़ा है। तो पहला क्लास का उद्देश्य आप में क्यूरियोसिटी पैदा करना है, क्या है क्या क्या बताए, ये सब। जैसे जैसे क्लास क्लियर होगा, आपका 1.2 में कल्चर है, उसको 2 दिन पढ़ाएंगे वहाँ, फिर थॉट में 1 दिन पढ़ाएंगे, तो 3 मतलब 4-5 क्लासेस कल्चर पर होगा, तब आपको एक पूरा पिक्चर मिलेगा। और यही बात का रिपीटेशन भी होगा जो आज थोड़ा बताए हैं। नेचर डिफरेंट, फंक्शन सेम, कल्चर वे ऑफ लाइफ है। आप हर समय कल्चर के अनुसार जीते हैं, आपको पता नहीं रहता, इतना आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं ना। बट बी एज ए ह्यूमन एवरीवेयर फॉलो रूल्स, फॉलो कल्चर, ठीक है। तो कल्चर पर आपको कई क्वेश्चंस, कल्चर का आपको 1.2 नहीं 2.1 है कल्चर, वो दिन पढ़ाएंगे, फिर थॉट में पढ़ाएंगे, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तब तक वेट करते रहना होगा, ठीक है। तो टुमारो क्लास लेंगे ही, क्लास ही 5:35 आज हमने कर दिया था, लेकिन कल से 5:30 ही कर देंगे। 5:30 में आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स। सुनो, उस कंप्यूटर जानते हो, बता दो उसको।